hope you're doing well. आज के संडे स्कूल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है. Before we begin this Sunday school, let's look to God in a word of prayer. Loving Heavenly Father, we thank you and we praise your holy name today. Thank you, Lord Jesus, that you help us, you protect us, and you guide us, Master. Thank you, Lord Jesus, hallelujah, once again. Father, we commit the Sunday school and all the children who are watching us today. Father, bless them, heal them, anoint them, and let your glorious guidance be upon them. We ask this prayer in the name of Jesus. Amen. So now it's time for some action song. Let's get to our feet and let's dance. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Jireh, my provider. His grace is sufficient for me, for me, for me. Jehovah Jireh, my provider. His grace is sufficient for me. My God shall supply all my needs according to his riches and glory. He will give his angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. Jehovah Jireh, my provider. His grace is sufficient for me, for me, for me. Jehovah Jireh, my provider. His grace is sufficient for me. My God shall supply all my needs according to his riches and glory. He will give his angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. Jehovah Jireh, my provider. His grace is sufficient for me, for me, for me. Jehovah Jireh, my provider. His grace is sufficient for me. Praise the Lord. My name is Shrishti. Today we will read from Psalms chapter 125, भजन संहिता अध्याय 125. आइए हम अपने बाइबल ले लें और एक साथ मिलकर पढ़ेंगे. Let's take our Bibles and read together. Those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be moved but abides forever. As the mountains surrounded Jerusalem, so the Lord surrounds his people, for this time forth and forevermore. For the scepter of wickedness shall not rest on the land allotted to the righteous, lest the righteous stretch out their hand to do wrong. Do good, O Lord, to those who are good, and to those who are upright in their hearts. But those who turn aside to the crooked ways, the Lord will lead away with evildoers. Peace be upon Israel. जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है. जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा. क्योंकि दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना ना रहेगा. ऐसा ना हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाएं. हे यहोवा, भलों का और सीधे मन वालों का भला कर, परंतु जो मुड़कर टेढ़े मार्गों में चलते हैं उनको यहोवा अनंत कार्यों के संग निकाल देगा. इस्राएल को शांति मिले. थैंक यू. और तुझ
The Holy Bible in Matthew chapter 6 verse 13 and 32 says, "Therefore do not be anxious, saying, What shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the Gentiles seek after all these things, and your heavenly Father knows that you need them all." इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्ग पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। फ्रेंड्स, आइए आज हम इज़राइलिट्स की जर्नी में आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि गॉड हेल्प द इज़राइलिट्स टू कम आउट ऑफ इजिप्ट। गॉड इज़राइलियों को इजिप्ट के बंधुआई में से निकाले, उनकी सहायता किए कि वे इजिप्शियन आर्मी से बच जाएं, क्योंकि गॉड उनसे बहुत प्यार करते थे। बिकॉज गॉड इज़ अ प्रॉमिस कीपिंग गॉड, ही डिड वंडरफुल वर्क्स फॉर देम। गॉड उनके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म किए। गॉड के फेवर को आज हम सुनेंगे। गॉड सिर्फ उनको डेजर्ट में से यूं ही नहीं लेकर जा रहे थे, बट हर एक स्टेप में, हर एक पड़ाव में उनके लिए एक प्रोविज़न, एक मिरेकल, एक फेवर था। परेशानियां तो थीं, तकलीफ भी था, क्योंकि डेजर्ट में यात्रा करना और टेंट में रहना इजी नहीं होता है। Some studies says that they walked 735 kilometers. आप सोचिए, अगर आपको 735 किलोमीटर्स 40 डेज में चलना पड़ता, वो भी डेजर्ट में, तो कैसा लगता? But God gave them everything so that their journey becomes comfortable. गॉड इज़राइलियों को वो सब कुछ दिए जिससे उनकी जर्नी आरामदायक बन जाए। एक बार क्या हुआ कि इज़राइली चलते चलते कुछ ज़्यादा ही कठिन प्रॉब्लम में से होकर जाते हैं। होता ये है कि गॉड उनको टेस्ट करते हैं, क्योंकि गॉड वांटेड टू गिव देम समथिंग स्पेशल, बट बिफोर दैट ही वांटेड टू टेस्ट देम। सो गॉड उनको सूर नाम डेजर्ट में से होकर ले जाते हैं और उनको 3 डेज तक कोई भी पानी नहीं मिलता। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि इज़राइली मेरे और आपके जैसे लोग थे, तो बिना पानी का क्या हाल हुआ होगा उनका। शायद कुछ लोग बेहोश भी हो रहे होंगे और आपके जैसे छोटे प्यारे बच्चे रो रो कर उनका बुरा हाल होगा। बट गॉड अगर हमें प्रॉब्लम में डालते हैं तो हमें निकालते भी हैं, और इज़राइलियों को भी पानी तो मिला, मगर मारा का पानी मिला, बहुत ही बिटर और कड़वा पानी। फिर क्या, इज़राइली मोसेस के विरुद्ध बुड़बुड़ाने लगते हैं, तरह तरह की बातें करने लगते हैं, ग्रम्बल करने लगते हैं। और फिर मोसेस गॉड को पुकारता है। ही क्राइज आउट टू गॉड एंड गॉड शोड हिम अ पीस ऑफ वुड and asked him to throw it into the water. And then, my friends, the water became sweet and they were able to drink. Friends, आपके पास कितनी भी परेशानी हो, God can make your bitter situation a sweet situation. आपके हर परेशानी को दूर करके God आपको खुश कर सकते हैं। अब आगे ये हुआ कि डेजर्ट में उनको खाना कहाँ से मिलता। खेती वे कर नहीं सकते थे क्योंकि वे यात्रा में थे। कुछ समय बाद उनका खाना भी खत्म हो गया और फिर वो ग्रम्बल करने लगे, मोसेस को दोष लगाने लगे, मोसेस के बारे में कई प्रकार की बातें करने लगे। बट गॉड डिड समथिंग अमेजिंग एंड ब्यूटिफुल। गॉड टेल्स मोसेस ही विल प्रोवाइड फूड फॉर हिज पीपल। खाना जो स्वर्ग से आएगा। कैन यू बिलीव? आकाश से फूड। वाओ! जब आसमान से ओले गिरते हैं मज़ा आता है ना उसे देखने में। कई बार तो हम उसे उठाते भी हैं। सोचो, अगर कोई खाने वाली वस्तु ऊपर आकाश से गिरे कितना मज़ा आएगा। हम सब दौड़ते हुए उसे बटोरेंगे। ये सारी बातें 100% सच है फ्रेंड्स, क्योंकि बाइबल बताती है एक्सोडस चैप्टर 16 वर्स 4 में
He will rain down bread from heaven. देखो, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा. Now God drops manna from heaven. This manna was so precious कि वो ओस के साथ गिरता था और जैसे ही सन आए खराब हो जाता था. इस मन्ना को बटोरने के लिए कुछ रूल्स भी थे. रूल्स ये था कि जितना ज़रूरत हो उतना ही लेना है. अर्ली मॉर्निंग सन आने से पहले लेना है, क्योंकि अगर सन आ जाए तो वो उसमें मेल्ट हो जाएगा. सो फ्रेंड्स, हर दिन फ्रेश फूड, वो भी डेजर्ट में. हमारा गॉड कितना महान है ना? सिर्फ इतना ही नहीं, रात में गॉड उनको फ्लैश, मीट विच मीन्स क्वेल भी देते थे, जो इवनिंग में उनके खाने के लिए होता था. लेकिन ये फूड सिर्फ 6 डेज उनको मिलता था. 7th डे फिर क्या होता था? गॉड उनको 6th डे ज़्यादा कलेक्ट करने की परमिशन देते थे और इस बार मन्ना खराब नहीं होता था. तो फ्रेंड्स, अगर हम गॉड की इच्छा को जान के उसके अनुसार काम करेंगे तो हम कभी भी फेल नहीं होंगे. फिर अब इज़राइली आगे बढ़े और रेफीदीम नाम एक प्लेस को पहुंच गए, जहां फिर से उन्हें पानी की परेशानी हुई. फिर इज़राइली बुड़बुड़ाए और मोसेस पर चिल्लाने लगे. यहाँ पे तो फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन के मारे एक दूसरे से भी लड़े. मोसेस को तो जान से मारने पर आ गए. बोलने लगे, तुम बस हमें मारना चाहते हो. Again Moses cried out to God, and God answered. He said, Moses, टेंशन मत लो. अब तुम कुछ एल्डर्स यानी बड़े लोगों के साथ सबसे आगे चले जाओ. मैं होरेब पहाड़ पर खड़ा रहूँगा. I will wait for you there. और हाँ, मोसेस, उस लाठी को साथ लेना जिसे तुमने तब यूज़ किया था जब रिवर नाइल के वाटर को खून में बदलना था. फ्रेंड्स, गॉड मोसेस का होरेब पहाड़ पर वेट कर रहे थे. ज़रा सोचो तो, ज़रूर कुछ बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म, बहुत बड़ा मिरेकल होने वाला था इज़राइलियों के साथ, है ना? जैसे ही मोसेस वहाँ पहुँचा, गॉड मोसेस से कहते हैं, इस लाठी को उठा करके इस चट्टान पर मारो. और जैसे ही मोसेस लाठी उठा करके उस चट्टान पर मारा, चट्टान में से पानी निकलने लगा और उस पानी को पी करके सब लोग सेटिस्फाइड हो गए. Isn't God great and wonderful? And in this way, God proved that He is with His people. He is walking along with them. लेकिन आपने एक चीज़ ध्यान दिया? गॉड इज़राइलियों के लिए सब कुछ किए. He took them out of Egypt. Now he is helping them to walk through the desert. लेकिन फिर भी every time उनका ट्रस्ट, उनका फेथ कहीं खो जाता था. वे सब बुड़बुड़ाने लगते थे, मोसेस पर चिल्लाने लगते थे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने पास्ट को याद करते थे, इजिप्ट को याद करते थे. बट फिर भी गॉड, हु इज़ अ प्रॉमिस कीपिंग गॉड, उनको हर भली और अच्छी वस्तु देते थे. So my dear friends, don't be sad. He is capable of giving you what you want. अगर आपको एक सिंपल छोटा सा चॉकलेट खाने की भी इच्छा हो और आप गॉड से बहुत प्यार करते हैं, उन पे ट्रस्ट करते हैं, तो गॉड विल मेक प्रोविजंस. वो आपके लिए चॉकलेट का भी उपाय करेंगे. Isn't it beautiful that God loves us? He takes care of us. He gives us everything. Because the Bible says in Matthew chapter 7 verse 7, ask and it shall be given to you. For everyone who asks receives. मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है. तो फ्रेंड्स, आज का स्टोरी आपको कैसा लगा? हमें गॉड को हमेशा ट्रस्ट करना है. हर छोटी सी बात, हर बड़ी सी बात में हमें गॉड पर भरोसा रखना है. तो चलिए, अब समय है मेमोरी वर्स का, जो है फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 19.
मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारे हर एक घटी को पूरी करेगा। माई गॉड शैल सप्लाई ऑल माई नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस एंड ग्लोरी। मैं आप सबों को इनकरेज करूँगी कि आप इस मेमोरी वर्स को हमेशा याद रखें। एंड रिमेंबर दैट यू आर ब्यूटिफुल एंड प्रेशियस। सो फ्रेंड्स, आज हमने क्या देखा? आज हम ये सीखे कि कैसे परमेश्वर इजराइलियों को स्वर्ग से मन्ना खिलाते हैं और बहुत भरपूरी के साथ खिलाते हैं। और हमने ये भी देखा कि कैसे परमेश्वर चट्टान में से पानी पिलाते हैं। Isn't that amazing? Don't you think God is capable of giving you food, water, clothes and everything that you need? क्या आपको नहीं लगता कि यीशु मसीह परमेश्वर हमें सब कुछ दे सकते हैं जो भी आपको चाहिए? तो get ready to pray and pray every day for whatever you need. Let's end this program with a small word of prayer. Let's close our eyes and look to God in prayer. Dear Lord Jesus, we thank you, Lord. We praise your holy name. Thank you, God, that we know that you provide us everything. Dear Lord Jesus, we commit these children into your mighty and precious hand. Lord, if they are sick, heal them, Lord. Lord, if they want something, provide them, Master. Help them, Lord, to be obedient. Help them, Lord, to study well. Give them wisdom, knowledge, and understanding, Lord. Anoint them, Master. Thank you, Lord, for blessing them abundantly. Thank you, Jesus, for everything. We praise your name, we glorify your name. And in Jesus' precious and most holy name we pray. Amen. और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ साथ बनी रहे। आमीन। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर जॉइनिंग विद अस। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले संडे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, स्टे होम, वर्क हार्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर टू प्रे एंड रीड द बाइबल।